رائے تھی میری. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 7 شروع کریں گے، اور آج کے لیکچر سے آج ہم شروع کریں گے مرکبات. انگلش میں جیسے ہم سینٹنس کہتے ہیں، فریزز کہتے ہیں، عربی گرامر میں اسی طرح کے جملوں کو یا اسی طرح کے فریزز کو ہم کہتے ہیں مرکبات. ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ جانا کہ عربک گرامر میں موٹے موٹے طریقے سے ہمارے پاس صرف 3 قسم کے پارٹس آف سپیچ ہیں. کوئی بھی لفظ جو قرآن مجید میں ہے یا تو وہ اسم ہے یا پھر وہ فعل ہے یا پھر وہ حرف ہے. ہم نے جانا سب سے پہلے اسم کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی جانا کہ اسم کو جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اسم کا جنس ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اسم کا عدد ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اسم کی وسعت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح لاسٹ میں ہم نے یہ پڑھا پچھلے لیکچرز میں 2 لیکچرز میں کہ اسم کا اعراب کیا ہے. یعنی اسم اس وقت رفع حالت میں ہے، مرفوع ہے، نصب حالت میں ہے، منصوب ہے، یا جر حالت میں ہے جس کو ہم مجرور کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے وہ تھوڑا اہم ہے اس مناسبت سے، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے اسما پڑھے یا اسم پڑھا اس کو صرف ہم نے واحد پڑھا. جیسے مثال کے طور پر قلم، ایک ورڈ یعنی ایک اسم. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں صالح، کتاب، خالد، مکہ. یہ جو جتنے بھی ہم ورڈز پڑھتے ہیں عربک میں ان کو ہم کہتے ہیں مفرد. مفرد مطلب سنگل ورڈ، اور ابھی تک جتنے بھی ہم نے پڑھے ہم نے صرف سنگل ورڈ کے بارے میں پڑھا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب کے بارے میں، اور انگلش میں مرکب کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ. مفرد کا مطلب ہے کوئی بھی لفظ جو جملے میں استعمال ہو مگر وہ ایک ہو صرف، یعنی جو ایک سنگل ورڈ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مفرد. یعنی تنہا ورڈ جو بھی کوئی ہو، تنہا اسم جو بھی کوئی ہو، سنگل ورڈ جو بھی کوئی اسم ہو، اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں مفرد. اور اگر ایک لفظ کسی دوسرے لفظ سے مل کر آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب. یعنی مرکب کہتے ہیں، کمپاؤنڈ کہتے ہیں جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 الگ الگ الفاظ ہے، 2 الگ الگ لفظ ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الولد، لڑکا. پھر ہمارے پاس ہے الصالح، نیک. ٹھیک ہے، تو الولد الگ ایک مفرد ورڈ ہے، ایک الگ ایک مفرد اسم ہے، اور الصالح الگ ایک مفرد ورڈ ہے. اگر ہم ان دونوں کو ملا لیں، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے ہائی لائٹڈ، ہم نے لکھا ہے الولد الصالح، اصل میں لکھا ہے الولد الصالح، مگر ملانے کی صورت میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صاد جو ہے یہ حرف شمسی میں ہے تو ہم پڑھتے ہیں الولد الصالح. تو 2 الفاظ جب ہم نے ملائے تو اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں مرکب. یعنی مفرد پلس مفرد ہمارے پاس ہے مرکب. اب یہ 2 بھی مفرد ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، منی ایک ساتھ جتنے بھی، جس کو ہم سینٹنس کہتے ہیں نا اردو میں یا انگلش میں، اسی طرح عربی میں ان کو ہم کہتے ہیں مرکب. اب جب ہم مرکب کی بات کرتے ہیں عربی گرامر میں، یا تو یہ مرکب یعنی الفاظ کا جو جماوڑا ہے، الفاظ کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے، یا تو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ہمیں مکمل معنی دیں گے. ایسی صورت میں اس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکبی تام، یعنی مکمل جملہ. یعنی ایسے الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا
जिसमें मिलने के बाद एक मुकम्मल मानी मिले, ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबी ताम या मुकम्मल जुमला। जिसे उर्दू में जुमला कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज का या ऐसे मुफरदात का आपस में मिलना है, ऐसा मुरक्कब बनना है जो मुकम्मल हमें मानी दे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वो लड़का जा रहा है, या आपका नाम क्या है। देखिए, आपने सवाल पूछा, हमने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो इस इंफॉर्मेशन या सवाल को आप देख रहे हैं, जब मैंने अल्फाज को जोड़ा एक मुकम्मल माने हमारे सामने आ रहा है। तो जब हमने मुफरदात को मिलाया, अलग अलग सिंगल वर्ड्स को मिला के ऐसा आपके सामने पेश किया कि उसका एक मुकम्मल माने आ गया, तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी ताम। दूसरी सूरत यह है कि हम मुरक्कब बनाते हैं, यानी हम अल्फाज को जोड़ देते हैं, मुफरदात को जोड़ देते हैं, मगर हमारे पास जो माने हैं वो मुकम्मल नहीं मिलता, आधा माने निकलता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ऊपर लिखा है अल वलदुस सालिह, नेक लड़का। इसका तर्जुमा है नेक लड़का। अब ये नेक लड़का क्या कर रहा है? ये खा रहा है, जा रहा है, इसकी और क्या मजीद क्या चीजें हैं? आपने सिर्फ बताया नेक लड़का, माने तो आ रहा है मगर मुकम्मल माने नहीं आ रहा, उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं। तो ऐसे मुफरद को हम कहते हैं मुरक्कबी नाकिस अरबी में। जैसा कि आम उर्दू में कह सकते हैं मुकम्मल, मुकम्मल नामुकम्मल जुमला। नाकिस मतलब नामुकम्मल, जिसमें नक्स। और इंग्लिश में ऐसे मुरक्कबी नाकिस को हम फ्रेजेस कहते हैं। जैसे हमारे पास फ्रेजेस होते हैं, और जबकि पूरा जो हमारे पास जुमला होगा उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि हमारे पास अगर इस्म एक एक करके आए, एक एक वर्ड आए, उसको हम कहते हैं मुफरद। और जब मुफरद एक दूसरे के साथ मिले तो उसको कहते हैं मुरक्कब, यानी कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के दो किस्में हैं। अगर ये मुफरदात मिल के एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसका मुकम्मल तर्जुमा हो, ऐसे मुफरद को कहते हैं मुफरद ताम, मुरक्कब ताम। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मुकम्मल जुमला। ठीक है, दूसरा मुरक्कब है जो अल्फाज से मिलने के बाद बने मगर तर्जुमा पूरा ना आए, तो ऐसे नामुकम्मल मुरक्कब को हम मुरक्कबी नाकिस कहते हैं। ठीक है, तो मुरक्कबी नाकिस जो है ये कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब है जिसका मफहूम नामुकम्मल हो, यानी जिसका पूरा मफहूम समझ में ना आए। जबकि मुरक्कबी ताम कम अज कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब है जिसका मफहूम मुकम्मल हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी। तो आप इस चार्ट को याद रखिएगा। हमें पता चला मुरक्कब कहते हैं अल्फाज के मिलाप को, मुफरदात के मिलाप को। और अगर ऐसा मुरक्कब जो मुकम्मल माने हमें देता हो, ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कबी ताम या जुमला कहते हैं। और अगर मुरक्कब हमारे पास पूरा तर्जुमा न दे, नक्स हो उसमें, तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी नाकिस। तो आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, एक दो लेक्चर्स में चलेगा, इसको हम कहते हैं मुरक्कबी नाकिस। और अरबी में मुरक्कबी नाकिस जो है उनकी चार किस्में। क्योंकि हम अभी इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो इस्म के बारे में ही आएगा। मुरक्कबी नाकिस, अब फिर से मैं बताऊं, ऐसा नामुकम्मल जुमला जिसका तर्जुमा पूरा ना, मुरक्कबी नाकिस। यानी ऐसे मुरक्कबात जो एक दूसरे के साथ अल्फाज मिलने के बाद पूरा तर्जुमा न दे, ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबी नाकिस। अब मुरक्कबी नाकिस की चार किस्में हैं: मुरक्कबी तौसीफी, मुरक्कबी इजाफी, मुरक्कबी इशारी और मुरक्कबी जारी। मैं एक एक करके सबको बताता हूं क्या है। मुरक्कबी तौसीफी ऐसा मुरक्कब है जो किसी भी इस्म की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। यानी ऐसा मुरक्कब जो नामुकम्मल है, जो मुकम्मल जुमला नहीं है, नक्स वाला जुमला है, यानी नाकिस मुरक्कब है, मगर एक इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे। आपको मिसालें दूंगा। आप यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपके सामने दे रखी है। एग्जाम्पल जैसे मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल है अल वलदु अस्सालिहु, मिलाने के वक्त अल वलदु सालिहु, नेक लड़का। ठीक है, तो ये तो मुरक्कब है ना, क्योंकि ये दो मुफरदात से बना है, दो अलग अलग वर्ड से बना है, दोनों अस्मा है।
تو यहां पर जो अस्सालिहु है यानी नेक, ये नेकी जो इंफॉर्मेशन दे रही इस लड़के के बारे में दे रही, यानी नेक लड़का। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे, ऐसे इस्म को कहते हैं या ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबी तौसीफ। दूसरी किस्म है ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म की इजाफत, इजाफत कहते हैं निस्बत या ताल्लुक, या इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन, यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म का रिलेशन दूसरे इस्म के साथ बताया जाए, ऐसे इस्म को, ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। तो मुरक्कबी इजाफी किसको कहेंगे? ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म की इजाफत, इजाफत कहते हैं रिलेशनशिप, दूसरे इस्म के साथ जाहिर की जाए, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। मैं भी आपको डेफिनेशन दे रहा हूं एक एक करके, इंशाल्लाह ये सब चीजें जब एक्सप्लेन होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी मुकम्मल तौर पर। तीसरा मुरक्कब जो है, जो मुरक्कबी नाकिस की किस्मों में है, उसको कहते हैं मुरक्कबी इशारी। बहुत आसान है ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इस्म किसी दूसरे इस्म की तरह इशारा करे, यानी एक इस्म किसी दूसरे इस्म की तरफ इशारा करे, ऐसे इस्म मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इशारी। और चौथा मुरक्कब ऐसा मुरक्कब जिसमें हरफी जर इस्तेमाल हो, ठीक है, जिसमें हरफी जर में से कोई हर्फ आ जाए। अब वो क्या चीज है वो हम अगले टर्म में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम मुरक्कबी जारी को पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी बात जो हमें यहाँ पर समझ में बात आ गई वो ये है कि हमारे पास जब एक से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब हमारे पास दो है, या तो मुरक्कबी ताम मुकम्मल ऐसा जुमला जिसमें अल्फाज मिलने के बाद मुकम्मल तर्जुमा हमारे सामने हो, ऐसे कहते हैं मुरक्कबी ताम या जुमला। दूसरा, हमारे पास अस्मा मिले, हमारे पास इस्म मिले एक से ज्यादा, ठीक है, मगर तर्जुमा पूरी तरह जाहिर ना हो, ऐसे मुरक्कबात को कहते हैं मुरक्कबी नाकिस। और मुरक्कबी नाकिस जब मैंने बात की, मैंने आपको बताया मुरक्कबी नाकिस जो है इसकी चार किस्में हैं। सबसे पहले मुरक्कबी तौसीफी, जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। दूसरा है मुरक्कबी इजाफी, जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म के बारे में रिलेशनशिप को जाहिर करे, निस्बत या ताल्लुक को जाहिर करे। तीसरा मुरक्कबी इशारी, जिसमें एक इस्म दूसरे के बारे में इशारा करे। और चौथा है मुरक्कबी जारी, जिस मुरक्कब में इस्मी इशारा या हरफी जर जिसमें शामिल हो, इसको मुरक्कबी जारी कहते हैं। हरफी जर क्या होता है इसको भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, इन चार जो हमने चार अभी तक मुरक्कबी नाकिस के किस्में पढ़े, उसमें सबसे पहली जो किस्म है मुरक्कबी तौसीफी, हम इसको लेंगे और इसकी तफसील हम पढ़ेंगे, तब जाके आपको मिसालों के जरिए में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए मुरक्कबी तौसीफी क्या है। सबसे पहले हमने जाना कि मुरक्कब जब हमने नाम दिया, इसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा मुफरद शामिल, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स शामिल है। जब हमने तौसीफी नाम दिया, तौसीफी का मैंने आपको बताया जब एक इस्म दूसरे की सिफत जाहिर करे, ठीक है, एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत जाहिर करे, ओके। जिस इस्म की सिफत जाहिर करना हो उसको कहते हैं मौसूफ, जो भी यहां लिखा हुआ है, और जो सिफत जाहिर की जाती है उसको कहते हैं सिफत। यानी मुरक्कब में एक होता है मौसूफ, यानी जिसकी सिफत जाहिर की जाती है, और दूसरी होती है उसकी सिफत। अगर हम डेफिनेशन बताएं इस मुरक्कबी तौसीफी की, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब है, यानी ये दो ऐसे नाउन्स का जोड़ है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की खूबी या खामी को बयान करे। ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बताया नेक लड़का, नेक लड़का। अब लड़का जो है उसकी सिफत बताई जा रही है, वो नेक है, नेक लड़का, ठीक है। अब आप देखिए नेक लड़का जो है ये मुकम्मल जुमला नहीं है, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है ये मुरक्कबी नाकिस की एक किस्म है। और इस मुरक्कबी नाकिस में एक इस्म जो है वो दूसरे इस्म के बारे में
अच्छाई या बुराई जाहिर कर रहा है। जैसे यहां पर हमने बताया नेक लड़का, लड़के की क्या सिफत है, वो नेक है। सो लड़का जो है वो मौसूफ है और उसकी सिफत जो है वो नेकी है। ठीक है, तो इस इसम में या इस मुरक्कब में इसम जो है वो नेक है और दूसरा इसम जो है वो लड़का है, मगर ये जो लड़का है ये बन गया मौसूफ, जबकि नेक इसकी सिफत है। इसीलिए इस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी, जिसमें किसी इसम की नेकी, अच्छाई, बुराई, खामी जाहिर की जाती है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपके सामने जाहिर किया, जिस इसम की खूबी या खामी बयान की जाती है उसको कहते हैं मौसूफ, जबकि जो उस इसम की खूबी या खामी बयान की जाती है उस चीज को कहते हैं सिफत। ठीक है, जब हम उर्दू या इंग्लिश में मुरक्कबी तौसीफी को लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सिफत को लिखते हैं, उसके बाद मौसूफ को लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं गुड बॉय, पहले हमने सिफत को लिखा गुड, फिर हमने लिखा मौसूफ को बॉय, है ना। जैसे हम लिखेंगे ग्रेट पेन, हमने सिफत लिखा उसके बाद मौसूफ लिखा। जैसे मैंने कहा नेक लड़का, हमने पहले सिफत लिखी उसके बाद मौसूफ के बारे में बयान किया। अरबी में उल्टा हो जाता है, अरबी में सिफत पहले आ जाती है उसके बाद मौसूफ आ जाता है। ये अरबी, उर्दू और इंग्लिश में फर्क है। उर्दू इंग्लिश में सेम है, जबकि अरबी में जब हम मुरक्कबी तौसीफी लिखते हैं हम सबसे पहले सिफत को लिखेंगे उसके बाद मौसूफ को लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई भी जुमला देखते हैं, मिसाल के तौर पर यहां लिखा है कोई नेक बंदा, तो नेक सबसे पहले आ गया उर्दू में, बंदा उसकी सिफत बाद में आ गई। ये उर्दू का तरीका है। मगर अरबी में क्या है कि उल्टे तीर चलते हैं। आपने देखा ये तीर उल्टा चला है। हमने सबसे पहले तर्जुमा किया बंदे को मुरक्कबी तौसीफी बनाने में, तो बंदे का जो तर्जुमा है वह अब्दुन, और नेक होना उसकी जो सिफत है उसको बाद में ले आए, तो अब्दुन सालिहुन, नेक बंदा, कोई नेक बंदा। ठीक है, तो अरबी में हमने क्या किया, जब हमने मुरक्कबी तौसीफी बनाया हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मौसूफ लाया, हमने मौसूफ को लाया। मौसूफ मतलब जिसकी सिफत जाहिर की जाती है, बताई जाती है, उसके बाद उसकी सिफत को लाया। जैसे यहां पर लिखा है अब्दुन सालिहुन, ठीक है, पहले हमने बंदे को लाया उसके बाद उसकी सिफत को लाया। हालांकि उर्दू का तर्जुमा आप देखिए नेक बंदा, सबसे पहले सिफत है उसके बाद मौसूफ है। तो ये फर्क आप याद रखिए, उर्दू या इंग्लिश और अरबी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज को जानने के बाद अभी हम इंशाल्लाह जब इसकी मशक करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको मशक कराऊं मुरक्कबी तौसीफी की, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप इसम पढ़ेंगे आपको 4 चीजों का इल्म होना जरूरी है, याद रखना चाहिए, हमेशा आपको लगेगा 4 चीजों का इल्म। सबसे पहले जिन्स, दूसरा आदद, तीसरा वुसअत और चौथा एराब। ये 4 चीजें यहां लिखी गई। और कायदा जो है मुरक्कबी तौसीफी बनाने का, अब याद रखिएगा, अब हम असल ग्रामर पे आ गए और आप देखेंगे कि ये ग्रामर अब पूरे कुरान मजीद में फॉलो हो रहा है। क्या कायदा है मुरक्कबी तौसीफी बनाने का? कायदा ये है कि जो भी हम मौसूफ पहले लिखते हैं उसके बाद सिफत लिखते हैं, मौसूफ और सिफत में ये 4 चीजों में मुताबिकत होगी, इन्हें रिलेशनशिप होगी। मसलन अगर जिन्स हमारे पास मुज़क्कर होगा, ठीक है, यानी हमारे पास अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो उसकी सिफत भी मुज़क्कर ही होगी। अगर मौसूफ अदद के हिसाब में 1 है तो उसकी सिफत भी 1 ही लिखी जाएगी। अगर मौसूफ वसात में मारिफा है तो उसकी सिफत भी मारिफा होगी। अगर नकिरा है तो सिफत भी नकिरा होगी। इसी तरह अगर मौसूफ एराबी हालत में हमारे पास रफ़ी हालत में है तो उसकी सिफत भी रफ़ी होगी। अगर मौसूफ नस्बी हालत में है तो उसकी सिफत भी नस्बी में होगी। अगर मौसूफ जरी हालत में है तो सिफत भी जरी हालत में होगी। ये कायदा आपको याद रखना है। मुरक्कबी तौसीफी बनाने के सिर्फ 2 कायदे हैं अरबी ग्रामर में। सबसे पहला कायदा यह है कि अरबी ग्रामर में जब आप मुरक्कबी तौसीफी बनाते हैं तो बरखलाफ उर्दू और अंग्रेजी के
इसमें हम मौसूफ को पहले लाते हैं, सिफत बाद में लाते हैं। हालांकि इंग्लिश और उर्दू में पहले सिफत लाते हैं, बाद में मौसूफ को लाते हैं। ये एक डिफरेंस है। दूसरे डिफरेंस या दूसरा आपको रूल ये याद रखना है कि मौसूफ और सिफत, इसमें चारों चीजों से मुताबिकत होगी सिफत को मौसूफ के साथ। वो चार चीजें कौन है? जिन्स, अदद, वुसअत और आराबी हालत। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए सर, आपके सामने यहां पर लिखा है अब्दुन सालिहुन। इसका तर्जुमा है कोई नेक बंदा। कोई मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये यहां पर नकरा है, मारिफा नहीं है। मारिफा होता है अलिफ लाम से, ये नकरा है। नकरा का तर्जुमा उर्दू में कहते हैं कोई। अगर मैं कहूंगा नेक बंदा तो एक खास बंदा बन जाएगा, तो मारिफा बन जाएगा। इसीलिए इसको तर्जुमा हम कहते हैं कोई नेक बंदा, या कह सकते हैं एक नेक बंदा, एक या कोई। ठीक है। अब देखिए अब्दुन जो है ये हमारे पास मौसूफ है, मौसूफ वाहिद में है। इसकी जो सिफत है सालिहुन, ये भी वाहिद में। ठीक है, तो आदद हो गया। अब्दुन जो है ये मुजक्कर है जिन्स के हिसाब से, सालिहुन भी मुजक्कर है। ठीक है। वसत के एतबार से अब्दुन जो है ये नकिरा है, सालिहुन भी नकिरा है। आराबी हालत जो अब्दुन की है, यानी मौसूफ की जो हालत है, वो है यहां पर रफी हालत, क्योंकि दो पेश है। सालिहुन इसमें भी दो पेश होगा। तो चारों चीजों से जो हमने पढ़े थे इसम के बारे में, मौसूफ और सिफत के साथ मुताबिकत होगी, रिलेशनशिप होगी। अब ये हमेशा आप देखेंगे। अब देखिए इसके बरक्स में एक और जुमला है, अल अब्दु सालिहु या अल अब्दु अस्सालिहु। अब देखिए इसका तर्जुमा क्या है? नेक बंदा। इसका तर्जुमा कोई नेक बंदा है या एक नेक बंदा है। इसमें है नेक बंदा। क्यों? इसमें अलिफ लाम लगा। अलिफ लाम लगाने से क्या हो गया? ये नकिरा से मारिफा में तब्दील हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है अल लगाने से नकिरा जो इसम है वो मारिफा में तब्दील होता है। ठीक है। अब देखिए ये भी चारों तरफ से मुताबिकत है। सबसे पहले आप देखिए जिन्स, अल अब्दु वाहिद, सॉरी जिन्स कहते हैं मुजक्कर मुअन्नस। अल अब्दु हमारे पास है मुजक्कर, अस्सालिहु मुजक्कर। अदद देखिए अब्द है वाहिद, अस्सालिहु ये भी वाहिद। वुसअत है अल अब्दु, अल अलिफ लाम लगा है तो ये मारिफा है। अस्सालिहु तो सालिहुन यहां पर था, इसकी वजह से यहां जब अल लगा तो इसमें भी अल लग गया, क्योंकि मुताबिकत है ना। उसके बाद आराबी हालत अल अब्दु इसमें पेश है, यानी ये रफी हालत में है। अस्सालिहु ये भी रफी हालत में। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, अब्दन सालिहन। अब देखिए ये तीन एतबार से ऊपर की तरह है। ये कैसे? जिन्स में ये मर्द है, अदद में वाहिद है, वुसअत में ये नकरा है, मगर आराबी हालत में ये हुन के बजाय हन है। ठीक है। और इस हालत को हमने, पहली हालत को हमने कहा था मारिफा। ठीक है, सॉरी मरफू। इसको हमने मरफू कहा था। इसको हम कहेंगे मनसूब। मरफू क्यों? इसमें रफी हालत में है। मनसूब क्यों? ये नस्बी हालत में है। दो जबर होता है नस्बी हालत में। ठीक है। तो ये अगर नस्ब हालत में तब्दील हो गया, अब्दन बन गया, तो ये भी बन जाएगा सालिहन, क्योंकि हमें चारों एतबार से सेम रखना है। तीसरी मिसाल अब्दिन सालिहिन, तो तीन तो ऊपर की तरह है, बस आखिर आप देखिएगा अरबी हालत हमने यहां तब्दील की, इसको हमने जरी हालत में लाया, इसको कहते हैं जर हालत। इसकी वजह से ये जो उसकी सिफत है सालिहिन, ये भी जरी हालत में आ गई। तो इस तरह आपको पता चलना चाहिए मुरक्कबी तौसीफी बनाने के जो कायदे हैं वो सिर्फ दो हैं। अरबी में मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगा, यानी इसका जो उर्दू और इंग्लिश में उल्टे तीर चलेंगे जैसा आपने यहां पर बनाया। दूसरा ये कि इसम के जितने भी चार पहलू हैं वो मौसूफ और सिफत में मुताबिकत होगी। जैसा मौसूफ होगा वैसी उसकी सिफत होगी। अब देखिए मिसाल के तौर पर हमने यहां पर क्या किया, हमने लिखा अब्दानी, दो बंदे, कोई दो बंदे। ठीक है, अब्दानी। अब अगर इसकी हम सिफत बयान करेंगे, ये मौसूफ हो गए अब्दानी, तो अब्दानी जो है जिन्स के एतबार से ये मर्द है, दो मर्द। अदद के एतबार से ये मुसन्ना है, यानी दो है। ठीक है। और वसत के एतबार से ये नकिरा है।
جبکہ اعرابی حالت میں آنی جو ہے نا آنی، اور آپ کو پتا ہے اعرابی حالت میں یہ کس حالت میں ہے، یہ ہے ہمارے پاس جس کو ہم رفیع حالت میں کہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے صالحان برابر جتنے بھی پہلو اسم کے اسم ہے موصوف میں وہ تمام صفت اس میں بھی ہے، صفت میں بھی ہے عبدان صالحان، ٹھیک ہے۔ عبدان کو اگر ہم کہیں گے عبدائن، اب دیکھیے یہ یہاں پر تو ہمارے پاس رفیع حالت میں تھا، اب اگر ہم اس کو نصبی حالت میں تبدیل کریں گے عبدان بن جاتا ہے عبدائن۔ اب دیکھیے اسی طرح اس کی جو صفت ہے صالحین وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور صالحین جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس نصب بھی ہے اور جر بھی ہے، اسی لیے یہاں پر جو میں نے انڈیکیٹ کیا ہے نا، انڈیکیٹر پچھلے بار میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ یہاں پر ہمارے پاس اوپر کی طرح جو مرون کلر میں تیر بنا ہے اس کو آپ انڈیکیٹ کر دیجئے، یہ ہمارے پاس رفع ہے، یہ نیچے کی طرح جو گرین ہے یہ نصب ہے، اور یہ جو پرپل کلر اس طرح لکھا ہے تو یہ جر ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کیونکہ یہ کنٹینیو چلے گا۔ اسی طرح اگر ہم جمع کی مثال دیں گے، کچھ نیک بندے، اب دو سے زیادہ ہے یہ تو کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا عبادن، عبادن بہت سارے، دو سے زیادہ۔ تو اسی طرح عبادن جنس کے اعتبار سے مرد، عدد کے اعتبار سے یہ جمع ہے، وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت میں یہ کیا ہے، اعرابی حالت میں یہ، کیونکہ اس طرح آپ انڈیکیشن دیکھ لیجئے، اعرابی حالت میں یہ رفع حالت میں، اور رفیع حالت میں لکھا جاتا ہے صالحون، ٹھیک ہے، صالحون، جبکہ نصبی حالت میں یہ صالحین ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے اگر آپ اعرابی حالت کو دیکھیں گے۔ اسی طرح ہے العباد، یہاں پر ہم نے تبدیلی کی وسعت کو، اس کو ہم نے نکرہ سے معرفہ میں لایا تو یہ بھی صالحون جو تھا یہ الصالحون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھنا چاہیے جب بھی ہم موصوف اور صفت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وسعت جو ہے یہ نکرہ اور معرفہ دونوں میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے لکھا کوئی نیک عمل، عمل صالح، جب ہم نے کہا کوئی تو یہ نکرہ ہے، اب لکھا ہم نے نیک عمل، نیک عمل مطلب کوئی خاص نیک عمل، ہم لکھیں گے العمل الصالح، ملاتے وقت پڑھیں گے تو العمل الصالح۔ اسی طرح دیکھیے عملاً، عمل کے بارے میں لن دو زبر ہے تو یہ نصبی حالت میں ہے، تو اس کی جو صفت ہے صالحاً یہ بھی نصب میں تبدیل ہو گئی۔ عرشن، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے عظیم، چاروں اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہے، یہ ہم نے جنس کی طرف سے بھی دیکھنا ہے، عدد کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، وسعت کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، اور ہمارے پاس اعرابی حالت میں بھی دیکھنا ہے۔ یہاں دیکھیں عرشن، موصوف کو ہم نے جر کی حالت میں لیا ہے، تو عرشن، اوپر عرشن تھا تو عظیم ہے، نیچے عرشن ہے تو عظیمن ہے۔ جس طرح موصوف جو ہے جری حالت میں آ گیا، اسی طرح اس کی صفت بھی جری حالت میں۔ العرش، اب دیکھیں ال لگانے اس کے ساتھ ہم نے موصوف کو معرفہ بنایا، اور اس کی صفت جو ہے وہ بھی معرفہ بنائیں گے، جیسے العرش کیا ہم نے العظیمی، ایک تو معرفہ بنایا، دوسرا اس کو ہم نے جری حالت میں، تو جب یہاں جا رہا ہے تو یہاں پر بھی جا رہا ہے۔ اور ترجمہ میں بھی فرق ہے، دیکھیے جب ہم عرشن عظیمن کہیں گے نکرہ میں تو ایک عظیم تخت، اگر ہم کہیں گے العرش العظیم عظیم تخت، ٹھیک ہے، یہ خاص بن جاتا ہے۔ اجر عظیم، ایک عظیم بدلہ، اجرن عظیما، ایک عظیم بدلہ۔ دیکھیے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں جلال صاحب یا دوسرے ساتھی جو ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ سیم ہے، مگر اگر آپ دیکھیں گے اعرابی حالت تبدیل ہے، یہاں پر اعرابی حالت جو ہے وہ رفیع حالت میں ہے، یہاں نصبی حالت میں۔ فوز عظیم، ایک عظیم کامیابی۔ عدو مبین، ایک کھلا دشمن، قرآن مجید میں لکھا گیا اکثر۔ قول سدید، ایک سیدھی بات۔ قولا سدیدا، ایک سیدھی بات، ترجمہ سیم ہے،
مگر یہاں پر اوپر جو تھا قول سدید، وہ یہاں پر جو مثال تھی وہ مثال ہمارے پاس رفیع حالت میں ہے، اور دوسری جو قولا سدیدا یہ ہمارے پاس نصبی حالت ہے۔ فساد کبیر، کوئی بڑی خرابی، الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، دیکھیے مردار شیطان، ٹھیک ہے، خاص، اگر کہیں گے کوئی شیطان تو شیطان الرجیم آئے گا، مگر جب ہم نے کہا الشیطان الرجیم تو مردہ، ایک خاص شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح الدرک الاسفل، سب سے نیچے درجہ، یہ قرآن کے تمام الفاظ ہے۔ صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ، اگر الصراط المستقیم ہوتا تو وہ ترجمہ ہوتا سیدھا راستہ۔ اب دیکھیں نا، جب ہم موصوف کو کہتے ہیں تو صفت کی جو تبدیلی ہے اسی کے ساتھ آ جاتی ہے، سب سے پہلے موصوف اس کے بعد صفت۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اسوۃ حسنۃ، ایک اچھا نمونہ، اسوۃ حسنۃ، ایک اچھا نمونہ، کوئی فرق نہیں ترجمے میں، صرف اوپر جو تھا رفیع حالت میں ہے مرفوع تھا، نیچے نصبی حالت میں ہے منصوب میں ہے۔ جنت عالیۃ، ایک عالی شان باغ، حیات طیبۃ، ایک پاکیزہ زندگی، ذریۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ اولاد، ذریۃ طیبۃ، اس کا بھی ترجمہ وہی ہے، بس صرف اعرابی حالت تبدیل ہے۔ آیۃ بینۃ، کوئی روشن نشانی، آیات بینات، آیات جب آ گیا تو کچھ، یعنی ایک سے زیادہ، یہاں جمع کا صیغہ ہے تو بینات بھی جمع کے صیغے میں آ گیا۔ النفس المطمئنۃ، دیکھیں نفس جو ہے، یاد رکھنا چاہیے نفس جو آتا ہے وہ مؤنث آتا ہے، اور اسی لیے المطمئنۃ یہ بھی اس کی صفت بھی مؤنث میں ہی آیا۔ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ الدار الاخرۃ، الدار، دیکھیں را پہ زبر ہے، یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے۔ نار حامیۃ، نارن جو ہے، نار جو ہے عربی میں یہ مؤنث ہے، اسی لیے حامیۃ یہ بھی مؤنث آ گیا۔ عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ عین جاریۃ، ایک بہتا ہوا چشمہ۔ عینانی، یہ دیکھیں یہاں مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ نداختان، یہاں پہ بھی مثنیٰ کا صیغہ ہے، یعنی کوئی دو پھوٹے ہوئے چشمے۔ القرآن الحکیم، دونوں صورتوں میں یہ معرفہ ہے۔ الدین الخالص، خالص دین، دونوں صورتوں میں معرفہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس موصوف اور صفت میں مطابقت ہوگی۔ صرف ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، یہاں پر لاسٹ میں اس نوٹ کو آپ ظاہر کیجئے گا کہ اگر موصوف اگر غیر عاقل مخلوق کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث استعمال ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کتبن ہے، کتابن جو ہے اس کی جو جمع ہے وہ مکسر ہے۔ مکسر مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جمع سالم اور جمع مکسر، جب بھی آپ جمع مکسر آپ استعمال کریں گے نا، جیسے کتبن ہے وہ بھی غیر عاقل، عاقل کی نہیں، صرف غیر عاقل، اور عاقل قرآن مجید میں عربی گرامر میں صرف انسان، جن اور فرشتے، ان تین کو چھوڑ کے جب بھی آپ غیر عاقل کی جمع کو دیکھیں گے، جیسے یہاں پر لکھا ہے کتبن، تو یاد رکھیے گا اس کی جو صفت ہے نا وہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ حساباً یہاں پر جمع کا صیغہ ہے تو یہاں جمع استعمال ہونا چاہیے، مگر ایک خاص قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی جمع مکسر غیر عاقل کی جمع کو لیتے ہیں، یعنی جمع مکسر لیتے ہیں کسی غیر عاقل کی، جیسے کتابن کی جو جمع ہے نا وہ مکسر ہے کتبن، غیر عاقل کی جمع جو کتابن کی ہے وہ ہے کتبن، تو اس وقت ہم کتبن کے بعد اس کی جو صفت ہے وہ ہم جمع میں نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو ہم واحد مؤنث میں لائیں گے۔ ہم لکھیں گے کتبن جدیدتن، جدیدتن واحد ہے اور وہ بھی واحد مؤنث۔ اکثر یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ نے تو بتایا کہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہے، یہاں تو لگ ہی نہیں رہا، اسی لیے میں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ اگر آپ نے کسی غیر عاقل کی جمع کو دیکھا، غیر عاقل جمع مکسر، وہ بھی عام مکسر جمع نہیں، جمع مکسر، غیر عاقل انسان، جن اور فرشتوں کو چھوڑ کے، جیسے مثال کتاب ہے، اس کی جو جمع ہے وہ مکسر ہے، کتبن ہے، کتبن جو موصوف ہے اس کی جو صفت ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ واحد مؤنث کی صورت میں آتی ہے، جیسے کتبن قیمت، یہ یہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ ہے، صفت جو ہے واحد مؤنث آ گیا۔
अनहारुन, ये भी हमारे पास गैर आकिल की जमा है, नहरुन की जमा अनहारुन है, उसकी जो सिफत है वो जारियतुन, वाहिद मुअन्नस आ गई। अय्यामन, यहाँ पे भी यौम की जो जमा है अय्याम है, वो भी हमारे पास जमा मुकसर है गैर आकिल की, तो उसमें देखिए मादूदतन, मादूदतन ये वाहिद है, सिफत वाहिद है, वाहिद मुअन्नस, मुअन्नस वो भी। सुरुरुन कुछ, मरफूअतुन, सुरुर जो है शरीर की जमा सुरुर है, अब इसका जो सिफत आ गई वो है वाहिद मुअन्नस की। नमारिकु मसफूफतुन, तो यहाँ पर भी ऐसी है। इसी तरह अकलामुन, बहुत सारे कलम, ये भी जमा मुकस्सर है। कदीमतुन, उसकी भी जो सिफत है वो वाहिद मुअन्नस आ गई। और इसी तरह हमारा आज का टाइम खत्म हो गया, इसको मैं थोड़ा मजीद अगले लेक्चर में बयान करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस सबक को और जितने भी हमने असबाक पढ़े उनको हमारे लिए आसान बनाए, ताकि कुरान मजीद को समझने में हमारे पास कोई दुश्वारी पेश ना आए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।